Students, so as we have started the new topic from 10th standard, that is probability, and we have completed the two exercise, that is exercise 4.1 and 4.2. Now today we'll go start the third exercise. Okay, so here the first question is given that write the sample space S and write the events A, B, C. Okay, so here we have to write the sample space, we have to write the events, and we have to write the number of sample point and number of events. Okay, so first of all, you have already knows what are the sample space. So sample space is nothing but the number of outcomes. Suppose if I toss one die, then I'll get 1, 2, 3, 4, 5, 6. This number will be the outcomes. That is called sample space. Suppose if I toss two coins simultaneously, so what I get will get two heads simultaneously, then one head, one tail, then one tail, one head, then both tail. So that is HH, HT, TH, TT. So I have given all the sample space for every random experiment. Okay, so here they have given the questions. So using that question we have to write the sample space and we have to write the events. So here the first question is given that one die is rolled. So suppose one die is rolled, so we have to write the sample space first of all. After that we have to write the events. In that events we have to write A, B, C, three events. The questions are given. Question कैसा दिया है देखो इधर. This question is given and the event also given. First event A, this is also the question. Even number on upper face, means even number हमें check करना है. Then event B, odd number on upper face. Then event C, prime number on upper faces. Okay, so question is given that write the sample space and write the events A, B, C. So first question is that one die is rolled. तो जब one die roll करेंगे तो sample space क्या बनेगा, तो solution will be here S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this will be your sample space. Then what will be the number of sample point? Therefore n of s will be 6. कितने points है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of sample point will be 6. Okay, after that we'll come to the next. Write the events. The first event is given, ये भी question में given रहेगा. Even number on upper faces. Even means those number which are multiple of 2. So ये पूरे sample point में multiple number, even number कौन सा है? 2, 4, 6. So what will we write here? A is equal to bracket 2, 4, 6. So how many numbers are there here? 3 numbers. So what will write here? Therefore n of a is equal to 3. This complete the answer. First answer we have completed here. This is the second solution. Now we'll solve for the second. Third, that is odd numbers on upper faces. अभी हमें odd number check करना है. किसमें? sample space में. यही हमारा solution, इसमें से ही ढूंढ के लिखना है. First event we have taken from the sample space 2, 4, 6. For odd number we have to take the numbers from the sample point. ठीक है. So what are the odd number here? 1, 3, 5. So B will be, therefore B is equal to bracket 1, 3, 5. So how many numbers are there? 3. Therefore n of B is also 3. Odd numbers. Odd number मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते. Those number which cannot divide by 2. Okay. Now come to the third. Prime numbers on upper faces. Prime numbers मतलब क्या? ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते. जैसा फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 2 खुद के टेबल में आता, ओन टेबल में, बाकी कोई टेबल में आता है नहीं. 3 इज़ अ प्राइम नंबर. 4 is not a prime number. Why it is so? Because 4 will come in 2 table and 4 table. दोनों टेबल में आता, 2 के टेबल में भी आता. 2 2s are 4 and 4 1s are 4. So that is a composite number which will come in multiple of table. ठीक है, multiple table. Then 5 is a prime number because 5 से 5 के टेबल में आता. 6 is not a prime number because 6 will come in 2 tables and 3 table and 6 table. 3 tables में आते. 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है. So that is a composite number. Understanding my point? Then 7 is a prime number because 7 खुद के टेबल में आता. 8 is not a prime number. 9 is not a prime number. Why? 9 will come in 3 tables. 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है. Okay? 10 is not a prime number. 11 is a prime number. तो इसको न प्राइम नंबर बोलते. तो हमें क्या करना है? 1 से लेके 6 तक प्राइम नंबर ढूंढना है. तो 1 is not a prime number क्योंकि 1 तो हर जगह आता. 2 is a prime number. 3 is a prime number and 5 is a prime number.
4 और 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है। 6 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर? बिकॉज 6 विल कम इन 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। सो इट विल कम इन टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 6। तो ये 6 तीनों टेबल में आता है, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिर्फ 2, 3, 5 ये तीन ही नंबर ऐसे हैं जो खुद के टेबल में आते, बाकी कोई टेबल में नहीं आते। सो दैट इज अ प्राइम नंबर। सो विल राइट हियर therefore c is equal to 2, 3, 5. So how many numbers are there? 3, again 3. So n of c is 3. तो तीनों का आंसर क्या आया? 3. Understood? n of a is 6, n of s is 6, n of a is 3, n of b is 3, n of c is 3. Understanding? Okay, question is given that, again I am repeating, write the sample space means s and also write the events a b c. events given रहेंगे क्वेश्चन के अंदर। मैंने यहाँ सोल्यूशन क्वेश्चन लिखने को जगह नहीं थी, करके डायरेक्टली सोल्यूशन में लिखा दिया। ठीक है, तो 1 डाई इज रोल्ड, ऐसा 1 डाई रोल लिखे रहेंगे, उसके नीचे ये 3 इवेंट लिखे रहेंगे, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। ओके, तो 1 डाई इज रोल्ड तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? तो पहले सैम्पल स्पेस लिखने का, जैसा एक डाई रोल होगा तो सैम्पल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। देयरफॉर n of s is 6। आफ्टर दैट फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इवेंट है। इवेंट है में क्या बोला? इवन नंबर ऑन अपर फेस, मतलब जैसा हमने डाई टॉस किए तो हमको इवन नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन से इवन नंबर आ सकते हैं? 2, 4, 6। देयरफॉर n of a कितना आएगा? 3। फिर उसके बाद इवेंट भी क्या बता रहा? ऑड नंबर्स ऑन अपर फेस। ऑड नंबर ऑन अपर फेस मतलब बोले थे इसमें से ऑड नंबर ढूंढना है, तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता? 1, 3, 5। तो ऑड नंबर 1, 3, 5। तो n of b इज 3। ओके, फिर उसके बाद प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, तो प्राइम नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं? 2, 3, 5। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, n of c is 3। सो दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन। सो दीज आर द इवेंट्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये इवेंट सेट में जो लिखा रहता है वो इवेंट रहेगा, और जो n ऑफ में लिखा रहेगा दैट इज द नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। So here it is given that 2 dice are rolled simultaneously and write the events। अभी 2 उधर था क्या था? 1 dice are rolled, अभी इधर क्या दिया है? 2 dice are rolled। तो 2 dice roll हो रहा, तो फर्स्ट इवेंट दिया है the sum is multiple of 6। मतलब जब 2 dice roll हो रहा तो उसका जो भी सैम्पल पॉइंट मिलेगा वो सैम्पल पॉइंट में दो नंबर का सम मीन्स एडिशन कितना आना चाहिए? 6 मतलब मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6, 12, 18, 6 के जो भी मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एंड द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। एंड द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10 मतलब बोलो तो वही नंबर का एडिशन करूंगा तो उसका अपर फेस में मिनिमम वैल्यू कितना आना चाहिए? 10। मिनिमम 10 आना चाहिए, मतलब मिनिमम का मतलब होता है 10 से ज़्यादा। सो दैट विल बी 10, 11, 12, 13 ऐसे नंबर आना चाहिए, मोर देन 10। मैक्सिमम 10 मतलब बोले तो लेस देन 10। ये प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट याद रखो। whenever there is a minimum number, minimum 2 means more than 2। okay, minimum 2 means 2, 3, 4, 5, 6, it will be up। when it is maximum 2 that is down। ठीक है, means 2, 1, 0। ठीक है, so here the first event given is that the sum is multiple of 6। so first of all we'll write the sample space here। okay, what is given that here 2 dice are rolled simultaneously। whenever 2 dice are rolled, so what will be the sample space? so we'll write here S, sample space will be 1, 1, 1, 2, 1, 3 up to 1, 6 इतना आएगा। आफ्टर दैट 2, 1 मैंने लिखा के दिया ऑलरेडी तुमको, 2, 2, 2, 3 अप टू 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3 अप टू 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3 up to 4, 6, then 5, 1, 5, 2, 5, 3 up to 5, 6, then 6, 1, 6, 2, 6, 3 up to 6, 6। So here how many numbers are sample point are there? Therefore number of sample point is 36। This completes the sample space। सबसे पहले हमने sample space लिखे, कैसे लिखे समझ में आ गया? The sample space written in the form of
ब्रैकेट 1,1, दो डाइस को रोल करें, दोनों डाइस में 1 1 एक साथ आ सकता, फिर या फिर एक में 1 आएगा, दूसरे में 2, 1 3 1 4, ऐसा करते करते 1 6 तक पॉसिबिलिटी है। फिर इसका 2 के साथ आएगा 2,1 to 2,6, देन 3,1 to 3,6, देन 4,1 to 4,6। ऐसे टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? देयर विल बी अ 36 पॉसिबिलिटी फॉर द सैम्पल स्पेस हियर। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द सैम्पल पॉइंट हियर। नाउ वी हैव टू चेक फर्स्ट, अभी इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सम इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब ये जो ब्रैकेट में नंबर्स दिख रहे इनका सम करना है और उसका एडिशन कितना आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए, मतलब बोलो तो उसको ऐड करे बाद 6 के मल्टीपल नंबर आना चाहिए, 6 12 18 ऐसे नंबर। तो अगर ऐड करो 1 + 1 2 आ रहा, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा? नहीं, कैंसिल होगा। 1 + 2 3 नहीं आ रहा, 6 1,3 नहीं आ रहा, 1,4 आता इधर नहीं आएगा, इधर 1,5 है, मैंने लिखा नहीं दो नंबर, डायरेक्ट लिखा 1,4 1,5 फिर 1,6। 1,5 जो नंबर आ रहा है इधर बीच में, तो 1,5 को ऐड करें तो 6 आ सकता, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, वो ले सकते, वो पिकअप होगा फर्स्ट के लिए। देन 2,1 2,2 2,3 यहाँ तक एडिशन 6 नहीं आएगा, बट 2,4 देखेंगे, 4 और 2 का एडिशन 6 होता, तो ये पिकअप कर सकते हम। 2,5 नहीं कर सकते, 2,6 नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं कौन कौन से नंबर बोल रहा है? पिकअप करना है द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, द 6 का मल्टीपल मतलब 6 भी आना चाहिए या 12 आना चाहिए। ठीक है, फिर 3,1 नहीं आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 ले सकते हैं, 3 + 3 6 होता, 3 4 3 5 3 6 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 4,1 नहीं आ सकता, 4 और 2 का ऐड करो, 4 + 2 6, ओके 4,3 नहीं आएगा, यहाँ से 6 तक नहीं आएगा, तो 4,2 का एडिशन 6 होता, देन 5,1 का एडिशन 6 होता, और यहाँ से किसी का नहीं आएगा, डायरेक्टली 6,6 आएगा, क्योंकि 6,1 7 होता है, ये 8 ये 9 ये 10, 6,4 ये इधर 11 आता है, 6,5 फिर 6,6 12। तो ऐसे नंबर आएंगे जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? 6 और मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 और 12, तो लास्ट नंबर 12 तक आ सकता, 6,6 6 + 6 12। समझ में आ गया? फिर उसके बाद दिया है द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब बोलो तो 10 11 12, तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 10 आने के लिए अपना पहला हो सकता है ओके 4,6, इधर 4,3 के बाद 4,6 जो लूंगा मैं, 4 + 6 10 होता बराबर। उसके बाद 6,4 भी आएगा जिसका एडिशन भी 10 होता, फिर 5,5 आएगा, फिर 5,6 6,5 6,6। तो एक काम करता मैं ये पूरे लिख देता, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 4,4 4,5 5,4 5,5 6,4 6,5। ठीक है, पूरे नंबर लिख लिया मैंने। तो अब इसके अंदर तुम चेक करें तो कौन कौन से नंबर पिकअप होंगे जिसका एडिशन 10 आना चाहिए। देखो 1,6 का भी एडिशन 10 आता, पूरा चेक करना स्टार्ट से लेके एंड तक। तो जिसका एडिशन 10 आता वो पिकअप करना। तो किस किसका एडिशन 10 आता? जैसा अभी हम देखें तो सबसे पहले आएगा ओके 4,6 10 होता, ठीक है। उसके बाद 5,5 10 होता, फिर 6,4 10 होता, 10 हो गए। मिनिमम 10 मतलब 10 से ज़्यादा 11 के लिए 5,6 6,5 6,6। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर लास्ट वाला तो बहुत ईजी है, द डिजिट सेम डिजिट ऑन अपर और बोथ अपर फेसेस, मतलब सेम डिजिट आने चाहिए। तो कौन से सेम डिजिट होते हैं? 1,1 सेम डिजिट है दोनों फेसेस में, ये फर्स्ट फेस सेकंड फेस। 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। तो ऐसे डायगोनली नंबर लेने के पूरे। डायगोनली नंबर क्यों? इधर क्या बोला? थर्ड इवेंट सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस, मतलब दोनों अपर फेसेस में सेम डिजिट आना चाहिए। तो सेम डिजिट किस किस में आता है? 1,1 में सेम डिजिट आ रहा, देन 2,2 में आ रहा, 3,3 4,4 5,5 6,6। So those number will be come out for the third event. Understood? तो फर्स्ट इवेंट में कौन सा आएंगे? जिनका सम 6 आना चाहिए, 6 का मल्टीपल आना चाहिए, 6 और 12 ऐसे नंबर ढूंढने का जिसका एडिशन 6 आए और 12 आए, बस। उसके बाद सेकेंड इवेंट में द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका एडिशन करे बाद उसका वैल्यू 10 11 12 ये तीन ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। और थर्ड सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस, मीन्स ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका दोनों फेस पे, दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सिमिलर होने चाहिए। जैसा 1,1 सेम नंबर है, 1,2 नहीं, 2,2 सिमिलर नंबर है, 3,3 4,4 दो नंबर। नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर।
सो हियर देयर इज अ क्वेश्चन, फर्स्ट इवेंट इज गिवन दैट, तो मैंने अभी इवेंट ए करके लिखा, द सम इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब वो जो सैम्पल स्पेस मैंने बताया था उधर, वो इतने सारे सैम्पल स्पेस पॉइंट है 36, उसमें से हमें ढूंढना है मल्टीपल ऑफ 6। तो कौन कौन से थे मैंने जो बताया, तो वो था इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिखेंगे, तो पहले 6 किस में आता है, तो अपना आता है 1,5, सबसे पहले आता है 1,5 में 6 आता है, उसके बाद 2 1 के कॉलम 1 के रो में 1,5 6 आएगा, फिर 2 के रो में क्या आएगा 2,4 6 होता है, 3 रोज में थर्ड रोज में कौन सा आएगा 3,3, फोर्थ रो जो रहता फोर्थ रो उसमें क्या आएगा ओके 4,2, फिफ्थ रो में आएगा 5,1 एंड सिक्स रो में आएगा 6,6, तो ये टोटल आएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए पॉइंट 1 2 3 4 5 6, सबका एडिशन करके देखो देखो 6 आता है इनका सबका और इसका 12 आता है। सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6, चेक कर सकते 1,5 1 + 5 6, 2,4 6, 3,3 3 + 3 6, 4,2 4 + 2 6, 5,1 5 + 1 6, 6,6 6 + 1 6 + 6 12। समझ में आ रहा? आफ्टर दैट नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। अभी मिनिमम 10 का मतलब होता है हमें ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका एडिशन करे बाद आंसर 10 आना चाहिए, 11 12, मिनिमम 12 तक, क्योंकि लास्ट 6,6 है तो जिसका एडिशन 12 ही होता है, 13 तक जा ही नहीं सकता। तो मिनिमम 10 मतलब 10 से ज़्यादा, तो कौन कौन से आएंगे, तो इधर हमको लिखना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में तो कोई आएगा ना 10, कि लास्ट 1,5 पे एंड हो रहा ना, फर्स्ट रो 1,1 से 1,5 में नहीं आता है, सेकेंड रो में भी नहीं आएगा, थर्ड रो में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली स्टार्ट होगा फोर्थ रो से, तो फोर्थ रो में आएगा पहले 4,6 एडिशन कर लो 10 आता, फिर फिफ्थ रो में आएगा 5,5 जिसका एडिशन 10 होता है। ठीक है, फिर सिक्स्थ रो में आएगा ओके 6,4 जिसका एडिशन 10 होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ रो में और एक आएगा 5,6। ठीक है, फिर सिक्स्थ रो में आएगा 6,5 जिसका एडिशन 11 होता, 5 + 6 11 6,5 11 एंड फाइनली 6,6 दैट इज 12। तो कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर एन ऑफ बी कितना हो गया 6। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट द थर्ड दैट इज द लास्ट इवेंट, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस, मतलब हमें सेम डिजिट मिलना चाहिए फेसेस में। तो कौन कौन सा इवेंट्स आ सकता है, तो हमको पता है 1,1 सेम डिजिट है, फिर 2,1 2,2, फिर 3,3, देन 4,4, देन 5,5, देन 6,6, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ गए, तो एन ऑफ सी कितना आ गया 6। तो हर एक का आंसर 6 आ रहा। ठीक है, सॉरी इधर भी गलत लिखा मैंने, इधर 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 6, तो सब जगह 6 आ रहे, तो हर एक के सैम्पल पॉइंट सेम है बट सैम्पल स्पेस अलग है। देखो ए का जो सैम्पल पॉइंट है वो अलग है, नंबर ऑफ पॉइंट 6 6 6 सेम है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट द एग्जाम्पल। सो इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन में क्या दिया था 2 डाइज आर रोल्ड, तो 2 डाइज के हिसाब से सैम्पल स्पेस लिखना है, तो सैम्पल स्पेस विल बी 1,1 to 6,6, सो देयर विल बी 36 सैम्पल पॉइंट विल बी देयर। फिर उसमें फर्स्ट इवेंट दिया था दैट इज इवेंट ए, द सम इज मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 में हमें वही सैम्पल पॉइंट के अंदर ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिसका एडिशन करे बाद 6 आना चाहिए या 12 आना चाहिए। तो कौन कौन से इवेंट है, पहला 1,5, फर्स्ट रो में से एक ही इवेंट आएगा 1,5, जिसका एडिशन करेंगे तो 6 आता है। सेकेंड रो में से एक ही पॉइंट आ सकता है 2,4 जिसका एडिशन 6 होता। थर्ड रो में से 3,3 3 + 3 6, फोर्थ रो में से 4,2 दैट इज ऑल्सो 6, फिफ्थ रो में से 5,1 5 + 1 6 एंड सिक्स्थ रो में से 6,6 दैट विल बी 12, so there will be a 6 point, the NFS is 6. After that event B, the sum of digit on upper faces is minimum 10, मतलब ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिसका एडिशन मिनिमम 10 आना चाहिए, मतलब 10 11 और 12। तो हम लोग क्या कौन कौन सा ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में तो कोई ऐसे नंबर पॉइंट आएंगे नहीं जिसका एडिशन 10 हो सकता, तो अब हम लोग कौन सा आएगा, तो पहला फोर्थ 4,6 10 होता, 5,5 10 होता, 6,4 10, 5,6 को ऐड कर लो 11 होता, 6,5 को ऐड कर लो 6 + 5 11 होता, दैट इज मिनिमम 10, 6,6 को ऐड कर लो 12 आएगा। ठीक है, तो वो भी ग्रेटर देन 10 है, तो मिनिमम 10 का मतलब होता है 10 और मोर देन 10, so that will be 10 11 12। तो ये ऐसे सैम्पल पॉइंट मिले, दो सम इज
10, 11 एंड 12। तो ये सबका 10 आ रहा, फिर यहाँ से 11, फिर ये 12, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए? 6। आफ्टर दैट सेम डिजिट ऑन अपर फेसेस, तो मतलब सेम नंबर वाले कौन कौन से आते हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। सो देयर विल बी अ 6 number, ठीक है। सो दीज आर द सैम्पल पॉइंट्स। सो वी हैव completed the 2 questions from this the practice set. So this question is very important. This type of question will come for 4 marks for your board exam, okay. So the remaining example we will solve for the next class, okay. So I hope you understood this example. Try to solve at your home, okay, and do your practice for this example. Before solving this example, you have to remember the sample space, okay. In the first lecture I have already given all the sample point and the sample space for random experiment. हर एक experiment के लिए sample space मैंने बताया हूँ, वही sample space का यूज़ करके ओके तुमको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो 1 कॉइन के लिए कितना सैम्पल स्पेस होता है, व्हेन 2 कॉइन्स टॉस होंगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो जितने भी सैम्पल स्पेस दिया हो मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में, तुम चेक कर लो मेरे लेक्चर में जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हो प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर हर एक लेक्चर्स क्या वही लेक्चर के अंदर हर एक सैम्पल पॉइंट दिए हुए, वो सैम्पल पॉइंट को लर्न करो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।